welcome to Pratidin Pathshala. Myself Rashmita Chakravarti. Okay, I have chosen one very interesting topic from zoology, that is human endocrine system. Okay? Now human endocrine system is relating to two particular chapter, that is if you relate to particular chapter of class 10, this is in control and coordination part. Okay. Now if you see for class 11 also one particular chapter is there. This is the chemical coordination and integration is there. Okay. Now this human endocrine system is very interesting and important topic. So in case of human endocrine system, we will deal with the different types of endocrine glands, okay, the type of hormones, what are the disorders, in what way we are affecting in our daily life, the hormones are affecting in our daily life, everything we will deal with that. Okay. Now the thing is that before going into the depth of the chapter, we will start with what is endocrine gland. Okay. Now what is endocrine gland? मैं छोटा सा एक डायग्राम बना देती हूँ, इससे आपका क्लियर हो जाएगा. Let's see the diagram. आप listen एकदम अच्छे से सुना. It's very important chapter. Okay, it will help you in a longer run also. It is helping. This particular part is also important for competitive exams. Okay. Now see. Now this is a particular. मान लो this is a cell. The endocrine cells. They are diffusing out something over here. Okay. Now what they are diffusing out from the endocrine cell, I will reveal it later. Now see, this is an endocrine cell. Okay. These are cells, there's something they are releasing out. I will reveal it later. These are magical molecules. Okay. Now these are magical molecules. आपके दिमाग में अभी आया होगा कि magical molecules है क्या, in what way, क्यों मैंने यहाँ पर term magical molecules दिया, ये मैं धीरे धीरे आपको बता रही हूँ. Now the thing is that this particular molecules is going out, diffusing out, and they are coming out in contact of, this is our blood capillary. Always remember the endocrine glands are the glands which are cluster of cell. They are actually highly vascularized. Okay, they are highly vascularized, and therefore whenever anything is diffusing out from the system is going directly to the bloodstream. This is blood. Okay. Now the molecules which are present inside this, these are certain molecules which are the magical molecules present inside the blood capillaries. They are diffusing out, and then they are actually attaching to a particular cell, the target cell which is present in a different site of the body. These are our target cell. These are target cell. Okay. Now what happened that this particular magical molecule actually attaching to certain receptor. देख रहे हैं आपको symbol? These are receptor. Receptor like this. Is present in a particular cell is there. Receptors are present in just above the surface of the cell. Okay. These are receptor molecule. Now what is receptor molecule? Receptors are actually a particular molecule. यहाँ पे देखना मैं molecule word ज़्यादा use कर रही हूँ. These are nothing but protein, lipids, or it may be carbohydrate. But basically the receptors are made up of sugar plus protein. Therefore it is termed as glycoprotein. Okay. That means this is a combination of sugar with protein molecule. तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, हॉर्मोन्स जो यहाँ पे ब्लड से डिफ्यूज होके इस पर्टिकुलर रिसेप्टर्स में जाके बैठेंगे. मैंने क्या बोला था, एंडोक्राइन सेल से यहाँ पे मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, मैजिकल मॉलिक्यूल्स, एंड देन दिस मैजिकल मॉलिक्यूल्स आर सिटिंग ऑन द रिसेप्टर्स. ओके. नाउ मैजिकल मॉलिक्यूल्स इज व्हाट, मैंने अभी बीच में बोल भी दिया था, मैजिकल मॉलिक्यूल्स नथिंग बट दिस इज आवर हार्मोन ओनली. ठीक है, उससे हम डील करेंगे अभी. तो आपको अभी समझ में आ जाना चाहिए कि एंडोक्राइन ग्लैंड
is nothing but a type of gland which is normally secreting hormones. Okay, now these hormones are coming out and diffusing directly to our blood system. Whenever they are diffusing out towards the blood system, और जो भी molecule यहाँ पे blood से निकल के then they are sitting on certain receptor जो कि सेल के सरफेस में होगा या तो सेल के अंदर होगा, कहीं पे भी हो सकता है. तो रिसेप्टर्स में जाके बैठ गए. अब क्या होगा, देन दे आर पासिंग द सिग्नल कि अभी करना क्या है. ठीक है, आगे कोई भी अगर उसको इन्फॉर्मेशन देना है वो करना है. सपोज फॉर एग्जाम्पल हमारे बॉडी में जब हम खाना खाते हैं डाइजेशन के बाद, ओके, ब्लड ग्लूकोज लेवल अचानक से इंक्रीज हो जाता है. जब ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है, तुम समझ सकते हो ग्लूकोज लेवल ब्लड में ज़्यादा देर तक इंक्रीज होने से क्या होता है पता है, ज़्यादा इंक्रीज होने से वो हमारा जो ब्लड वेसल्स है उसको ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट करता है. कंस्ट्रिक्ट करने से उसका जो डायमीटर है वो नैरो हो जाता है. अगर वो छोटा हो गया तो इट लीड टू व्हाट, इट इंक्रीज द ब्लड प्रेशर. दिस इज वेरी बैड. सो इन दैट वे नेचुरली हमारा सिस्टम उसे होम्योस्टेसिस में, इक्विलिब्रियम में लाने का कोशिश करेगा. कैसे लाएगा, तो उसके लिए एक सबको पता है, ये कॉमन एक पर्टिकुलर हार्मोन है विच इज नॉर्मली सिक्रीटेड बाय पैनक्रियास, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंसुलिन. ओके, तो इंसुलिन का रोल क्या होता है, इंसुलिन का जो रिसेप्टर्स है, जो रिसेप्टर्स मैंने अभी तुम्हें बोला, दीज आर सर्टेन रिसेप्टर जो कि लीवर सेल में रहेगा इंसुलिन का रिसेप्टर, और दूसरा तुम्हें कहाँ मिलेगा पता है, एडिपोज टिश्यू में. शायद सबको इतना क्लियर नहीं होगा. एडिपोज टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है, दिस इज अ क्लस्टर ऑफ सेल मेड अप ऑफ एडिपोसाइट. ध्यान से सुनना, धीरे धीरे मैं लिख के दूंगी वो सब चीज़. एडिपोसाइट, अब एडिपोसाइट जो है वो फैट स्टोर करता है. ठीक है, और लीवर तो आपको पता ही है हमारा सबसे लार्जेस्ट विसरल ऑर्गन है. तो उन दोनों के ऊपर रिसेप्टर रहता है, किसके लिए, इंसुलिन के लिए. तो वो क्या करेगा, जो भी तुमने खाना खाया, ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो गया, उसको तो फिर से क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा ब्लड में, जिससे कि वैसो कंस्ट्रिक्शन ना हो, और वैसो कंस्ट्रिक्शन होने से तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा. तो ऑटोमेटिकली तब इंसुलिन क्या करता है, उस ग्लूकोज को लेके पकड़ के जाके दे के आता है लीवर में. ओके, लीवर के कहाँ पे, रिसेप्टर्स में. अगर मान लो कि रिसेप्टर्स एब्सेंट है, क्या सिस्टम उसे अलाउ करेगा कि वो अंदर जाए, नो. रिसेप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी हम ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ते हैं, इसमें तो एंडोक्राइन सेल, एंडोक्राइन ग्लैंड का स्पेसिफिक रोल है ही, हार्मोन का रोल भी है, उसके साथ एसोसिएट डिसऑर्डर्स भी है, सब कुछ है. लेकिन हमेशा ध्यान रखना ये रिसेप्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी एक शुगर और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है. जो रिसेप्टर्स अगर बाई चांस इट्स नॉट प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ एनी अदर सेल्स जिसका टारगेट किसी हार्मोन के साथ लिंक है, तो हमारा सिस्टम काम नहीं कर पाएगा. फाइन. सो एंडोक्राइन ग्लैंड, आई थिंक आपका क्लियर हुआ होगा. एंडोक्राइन ग्लैंड इज नथिंग बट अ क्लस्टर ऑफ सेल विच इज मेड अप ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक सेल्स. बेसिकली द एंडोक्राइन सेल्स आर मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल, थोड़ा सा मैं बोलती हूँ सब 9 में अभी आपको मिला होगा. ओके, 11 में भी मिलेगा. क्यूबॉइडल और कॉलमनर ये रहता है. अब होता क्या है, जो ये क्लस्टर है इसमें देखा ना मॉलिक्यूल्स निकल के आ रहा है, ये डायरेक्टली ब्लड में जाएगा. इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सोक्राइन ग्लैंड. एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है नॉर्मली डक्ट रहता है इसमें. मान लो कि लीवर, ओके, लीवर में अगर तुम देखोगे लीवर का जो बाइल जूस सिक्रेशन होता है, दिस इज वेरी कॉमन टर्म, सबको पता है. बाइल जूस जो सिक्रेट होता है इट इज गोइंग डायरेक्टली वाया डक्ट, और वो जाके कहाँ पे एंटर करता है, गोल ब्लैडर में. ओके, सलाइवरी ग्लैंड तुम्हें पता है बकल कैविटी के अंदर है, उसमें भी डक्ट है. तो ऑटोमेटिकली जो डक्ट होता है जिस ग्लैंड में, उसको एक्सोक्राइन बोलते हैं, और जिसमें डक्ट नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड. जनरली डक्ट एब्सेंट रहता है. ओके, अच्छा, चलो ये तुमने देख लिया. रिसेप्टर्स ध्यान रखना, दिस आर ग्लाइकोप्रोटीनस मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ शुगर एंड प्रोटीन कॉम्बिनेशन. ठीक है, तो ये हमने लिख लिया. अब मैं थोड़ा सा डिफरेंस तुम्हें बताती हूँ. तो एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन जो मैंने अभी बोला वो मैं थोड़ा लिख के बता देती हूँ. ओके, वेट फॉर ए वाइल, मिटा लो. ठीक है, अब आप देखो जो मैंने क्या बोला था आपको, एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस. ठीक है, डक्टलेस. ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, उसका स्पेसिफिक सिक्रीशन क्या है, स्पेसिफिक सिक्रीशन हार्मोन्स, जिसको मैजिकल मॉलिक्यूल्स मैंने बोला था. मैंने मैजिकल वर्ड क्यों यूज़ किया था मैं आपको बता रही हूँ, एक मिनट. हार्मोन्स. ओके, नेक्स्ट हम देखोगे एक्सोक्राइन ग्लैंड. ये हमें आज पढ़ना नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे दूँ कि मे बी आपके दिमाग में ये डाउट रहे कि व्हाट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑल अबाउट. तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का एक एग्जांपल देती हूँ जो नॉर्मली आपको पता है, लीवर एज अ सलाइवरी ग्लैंड. ओके,
सिलाइवरी ग्लैंड पता है, लीवर पता है, तो इसमें डक्ट होता है. सो वेन एवर दे आर डक्ट प्रेजेंट, इसका मतलब कुछ भी वो सिस्टम से डिफ्यूज आउट करके निकल रहा है. इट मे बी एन एंजाइम, इट मे बी बाइल जूस, ओके, इट मे बी म्यूकस, एनीथिंग. तो उसका डक्ट से होके फिर वो एपिथेलियल टिश्यू सेल्स को वो करेगा, उसके बाद वो काम करना शुरू करेगा. ठीक है, इसका मतलब इसमें डक्ट प्रेजेंट है और एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट एब्सेंट होता है. ठीक है, तो अच्छा, इसके बाद तुम्हें याद रखना है इसका जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स है, या तुम देखना चाहोगे क्या क्या है, थोड़ा सा लिख के रख सकते हो. तो तुम्हें यहाँ मिलेगा एंजाइम्स जो सबको लगभग पता है, ओके, फिर तुम्हें म्यूकस मिलेगा एक्सेट्रा, जो हम बाद में डील करेंगे कभी अगर हमने ये पढ़ा तो. फाइन. अच्छा, तो एंडोक्राइन ग्लैंड में ये मैंने थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया दिया जिससे कि तुम समझ पाओ कि हो क्या रहा है. फाइन. एंडोक्राइन ग्लैंड बेसिक में अब मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना पसंद करूंगी अबाउट आवर मैजिकल मॉलिक्यूल. व्हाई द हार्मोन्स आर कंसिडर्ड टू बी एज मैजिकल मॉलिक्यूल? Because these magical molecules are actually controlling everything. Controlling everything means what? They're controlling your mood swings. कभी गुस्सा उठता है, कभी रोने का मन किया, कभी भूख लग गया मान लो, तो मूड स्विंग्स हो, भूख लगी, वो गुस्सा उठा, एनीथिंग रिलेटेड टू प्यूबर्टी, दैट इज सेक्शुअल अटेनमेंट और दिस मैच्योरिटी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर एज ग्रुप. ओके, अच्छा, फिर उसके बाद आपका ऐसे भी हो सकता है कि पेरिस्टल्सिस पता है, डाइजेशन में जैसे वेव लाइक कंट्रैक्शन होता है, फूड जैसे हमने खाया फिर नीचे उतर के धीरे धीरे जा रहा है, ये सब भी हार्मोन कंट्रोल करता है. आपका ब्लड शुगर लेवल वो भी कंट्रोल करेगा. कभी ऐसे भी तो हो सकता है ना, मान लो कभी तुमने सुना होगा कोई डायबिटीज़ का पेशेंट हो, डॉक्टर उसे एडवाइस करते हैं कि आपको 2 to 3 आवर्स बाद थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहना चाहिए. क्यों? क्योंकि डायबिटीज़ आपको पता है इज लिंक्ड विथ शुगर, तो उसको क्यों खाना चाहिए थोड़ी देर बाद? क्योंकि अचानक से अगर शुगर लेवल डाउन हो गया तब भी प्रॉब्लम आएगा. तो वही हार्मोन ही ये सब मेंटेन करता है. ठीक है, जिससे कि ब्लड का जो एक पर्टिकुलर जितना भी ग्लूकोज उसमें अमाउंट रहना चाहिए उतना रहे, बाकी सब जाके जमा हो जाए फॉर फ्यूचर यूज़. तो फ्यूचर यूज़ क्या होता है ग्लूकोज का? ग्लाइकोजन जैसे. फाइन, वो हम डील करेंगे. तो अभी नाउ आई विल डील विद द व्हाट आर द बेसिक function of magical molecule, that is your hormone. I am writing certain points. Okay, see. Okay, अभी आप देखो यहाँ पे मैजिकल मॉलिक्यूल, मैं इसलिए बोलती हूँ सच में ये मैजिकल है, मैजिक की तरह हमारी बॉडी में काम कर रहा है. फाइन. तो मैजिकल मॉलिक्यूल को मैंने क्या बोला? दिस आर हॉर्मोन्स. Hormones are also known as primary chemical messenger. ओके, इससे देखो बहुत कुछ वर्ड तुम्हारा क्लियर हो जाएगा. प्राइमरी केमिकल मैसेंजर्स बोले. एंड हॉर्मोन्स जो है, हॉर्मोन्स नॉर्मली ग्रीक वर्ड से ऑरिजिनेट हुआ है. उसका मतलब क्या होता है? टू इम्पेल, या तो तुम्हें फोर्स करना कि तुम्हारा सिस्टम वर्क करे, हमेशा वर्क करे, जिससे कि हमेशा जो होम्योस्टेसिस है, दैट इज इंटरनल स्टेबल इन्वायरमेंट, वो मेंटेन रहे, नहीं तो बिगड़ जाएगा सब कुछ. मैंने एक वर्ड यूज़ किया अभी, होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस मीन्स इंटरनल स्टेबल इन्वायरमेंट. ओके, जो बॉडी में सब कुछ का एक बैलेंस रखना ये बहुत ज़रूरी है, जो कि हार्मोन रखता है. तो इसका एक फंक्शन के बेसिस पे तुम अगर देखना चाहो, अभी मैंने एक फंक्शन बोला कि वो होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है, इसमें लेकिन बहुत सारा कहानी छुपा हुआ है. फाइन. होम्योस्टेसिस इंटरनल स्टेबल इन्वायरमेंट मीन करने का मतलब वो तो सब मेंटेन कर रहा है. ब्लड का पीएच मान लो कितना है, ब्लड का पीएच है 7.4 to 7.8 है, दैट इज स्लाइटली अल्कलाइन. तो उस चीज़ को भी कितना पानी रहना है, कितना मॉलिक्यूल्स उसमें रहना है, किस बेसिस पे उसे वर्क करना है, तो वो सब भी हार्मोन ही देखता है, वो हार्मोन ही कंट्रोल करता है. तो होम्योस्टेसिस तो एक बहुत ब्रॉड वे में सब कुछ बता रहा है तुम्हें कि किस तरह से ये सिस्टम काम कर रहा है. फाइन. अच्छा, लेकिन इसका पार्टनर, हार्मोन का पार्टनर लेकिन और एक है, नर्वस सिस्टम भी है. नर्वस सिस्टम उस हार्मोन का पार्टनर है, जो कि एक्चुअली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की दिया हुआ है उस पर्टिकुलर चैप्टर में. लेकिन आज हम बेसिकली ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर ही डील कर रहे हैं. ओके, अब तुम देखो नंबर 2 क्या है. नंबर 2, दे आर ऑल्सो कंट्रोलिंग मूड स्विंग्स. ओके, मूड स्विंग्स कंट्रोल करना, या तो तुम मान सकते हो कि मूड स्विंग्स के बाद प्यूबर्टी का अटेनमेंट, दैट इज अटेनमेंट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी. ओके,
Then next, it also supporting the particular portion that is peristalsis. पेरिस्टल्सिस से आप वो मत होना, पेरिस्टल्सिस मतलब क्या है पता है? पेरिस्टल्सिस होता है वेव लाइक कंट्रैक्शन, ऐसे ऐसे खाना नीचे उतर के जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली खाना जब नीचे उतर के जा रहा है, इसके पीछे भी कुछ हार्मोन्स है, तो वो क्या करता है, हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें वो मूवमेंट क्रिएट करके, मसल्स का मूवमेंट करके खाना नीचे तक डालता है। नीचे मतलब क्या, एसोफेगस से आया, स्टोमक में गया, देन इज एंटरिंग टू द इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद डाइजेशन कंप्लीट हुआ, फिर एब्जॉर्प्शन होगा, तो उसके पीछे भी हार्मोन का हाथ है। ठीक है, मान लो कि तुमने फैट खाया, अभी गोल ब्लैडर से बाइल जूस आना है, उसके पीछे भी हार्मोन का हाथ है। मतलब घूम फिर के जाके ये सब कुछ हमारे बॉडी में कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए मैंने इसे मैजिकल मॉलिक्यूल बोला। ओके, तो हार्मोन्स प्राइमरी केमिकल मैसेंजर है, फंक्शन होम्योस्टेसिस हो, मूड स्विंग्स हो, प्यूबर्टी का हो, पेरिस्टल्सिस हो, इट मे बी रिलेटेड टू सम अदर मेनी फिजियोलॉजिकल फंक्शन। ठीक है, कभी हार्ट बीट इंक्रीज करना हो, कभी हार्ट बीट डिक्रीज करना हो। मान लो अभी हम लोग देख रहे पढ़ रहे, इस टाइम में अचानक से अर्थक्वेक आ गया, तुम समझ पा रहे हो क्या होगा? अर्थक्वेक आते ही हम क्या कर रहे थे और क्या नहीं कर रहे थे सब भूल जाते हैं। ओके, सो इन दैट वे हम भागेंगे भी, तो भागेंगे जब क्या होगा, ऑटोमेटिकली ब्रीथिंग रेट इंक्रीज होगा, फिर तुम्हारा क्या होगा, हार्ट बीट फास्ट होगा। उसके पीछे किसका हाथ है, ये सबको पता है शायद, ये हार्मोन का नाम एड्रेनालिन। ओके, तो वो तुम्हारा फाइट और फ्लाइट वाला हार्मोन है जो तुम्हें हेल्प करता है टू कोप अप विद द स्ट्रेस सिचुएशन। तो हुआ ना, अगर मान लो कि वो सिक्रेट ही नहीं हुआ, तुम समझ पा रहे हो क्या होगा? हम तो अर्थक्वेक आया पहले ही डर गए, यहीं पे हम गिर गए, तो ये तो बहुत झमेला हो जाएगा, फिर ऊपर ही सब गिर गया। तो ये चीज़ ना हो, इसीलिए हमारा सिस्टम हेल्प करता है कि किस तरह से हम उस पर्टिकुलर स्ट्रेस और इमरजेंसी सिचुएशन में वॉक कर पाए ना बेटर वे। तो ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो नंबर 4 में अगर लिख सकते हैं टू कोप अप विथ स्ट्रेस और एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो मैजिकल मॉलिक्यूल्स में अगर मैं बोलना चाहूँ ना, पूरा किताब लिख डालेंगे हम, इतना ज़्यादा फंक्शन है, वो पूरे सिस्टम को हमारा हेल्प कर रहा है कि किस तरह से उसे काम करना है। तो यहाँ पे देख लो, मैजिकल मॉलिक्यूल्स आर हार्मोन, दिस आर प्राइमरी केमिकल मैसेंजर्स। फंक्शंस आर होम्योस्टेसिस, इंटरनल स्टेबल इन्वायरमेंट मेंटेन रखना, मूड स्विंग्स, कभी गुस्सा उठना, कभी ये होना वो होना, कभी रोने का मन किया, एंड द वर्ड ऑफ डिप्रेशन इज़ वेरी कॉमन, जो कि नॉर्मली नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, बस हमें आराम से काम करना है। डोंट थिंक अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक एंड ऑल। आपको हमें पढ़ा रहे हैं, कोई भी हेल्प चाहिए, किसी तरह से भी हेल्प चाहिए, हम दे रहे हैं आपको, तो ऑटोमेटिकली आप उस चीज़ को यूटिलाइज़ करो, टाइम को यूटिलाइज़ करो ना बेटर वे, अच्छे से सीखो, पढ़ो। ठीक है, जिससे कि कोई भी ऐसे प्रॉब्लम ना आए। Then puberty, attainment of sexual maturity, then peristalsis हो to cope up with the stress situation। तो ये मैंने पॉइंट इसमें डिस्कस किया, जो कि कॉमन कुछ पॉइंट्स है रिलेटेड टू हॉर्मोन्स। अब हॉर्मोन्स बेसिकली, हॉर्मोन्स जो बोलते हैं हार्मोन मॉलिक्यूल बोलते हैं हम, सब कुछ एक्चुअली कहानी रिलेटेड है, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू मॉलिक्यूल्स। क्लास 11 में एक चैप्टर है दैट इज बायोमॉलिक्यूल्स, वेरी इंटरेस्टिंग, इज रिलेटेड टू मेनी अदर पार्ट। सो दिस पर्टिकुलर हार्मोन इज एक्चुअली व्हाट, ये है क्या? हार्मोन बोल रही हूँ मैंने, प्राइमरी केमिकल मैसेंजर बोल दिया, फिर मैंने ये बोला कि इज अ वर्ड विच इज ऑरिजिनेट फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ठीक है, हॉर्मन, इसका मतलब नॉर्मली क्या होता है, टू इम्पल, ठीक है, टू गाइड, टू फोर्स योर बॉडी, तो जिससे कि होम्योस्टेसिस और इक्विलिब्रियम मेंटेन कर पाए। लगभग हमेशा इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। तुम एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, कभी भी हमारे सिस्टम में एकदम इक्विलिब्रियम आके रुक नहीं जाता। हमारा सिस्टम हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने का कोशिश करता है, फिर बिगड़ता है, आता है, बिगड़ता है। जब इक्विलिब्रियम पूरा आ गया, इसका मतलब डेथ। ओके, इक्विलिब्रियम हमारे सिस्टम में कभी नहीं आता है, लेकिन लगभग एक पर्टिकुलर होम्योस्टेसिस, इंटरनल स्टेबल इन्वायरमेंट में रहे, इसमें हार्मोन हेल्प करता है। तो लगभग तुम घुसे हो, तो हार्मोन्स किस चीज़ से बना है अभी मैं वो बताऊंगी तुम्हें। हाँ, कुछ हार्मोन्स होते हैं जो प्रोटीन से बने होते हैं, सम हार्मोन्स आर मेड अप ऑफ लिपिड्स, ठीक है, एंड सम हार्मोन्स आर मिक्सचर ऑफ शुगर एज वेल एज लिपिड। ओके, तो जिसे हम ग्लाइकोप्रोटीन बोल सकते हो, जैसे हमने रिसेप्टर्स में बात किया था। सो इन दैट बेसिस द हार्मोन्स आर प्रोटीनस ऑल्सो, सम हार्मोन्स आर मेड अप ऑफ लिपिड एंड सम हार्मोन्स आर मेड अप ऑफ शुगर प्लस प्रोटीन, दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन, जस्ट लाइक रिसेप्टर्स। ओके, अच्छा, नेक्स्ट ये तुमने देख लिया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, चलो रुको, अभी मैं तुम्हें बताऊंगी डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, जिससे कि तुम रिलेट कर पाओ अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट हार्मोन्स, द डिसऑर्डर्स, एवरीथिंग। ठीक है, एंड इन व्हाट वे डेली लाइफ में हमें वो कैसे हेल्प कर रहा है, वो भी मैं तुम्हें धीरे धीरे बताना शुरू कर रही हूँ।
सी अगर मेल और फीमेल में नॉर्मली जो हार्मोन्स होते हैं या तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो एक्चुअली सिमिलर ही है, लेकिन गॉनर्स के केस में जाके वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। अगर तुम देखो हेड में, हेड एरिया में अगर मैं बोलूँ ब्रेन में 3 एंडोक्राइन ग्लैंड है। क्या लिख रही हूँ मैं अभी? 3 एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ओके 3 है। तो क्या क्या है? हाइपोथैलेमस, दिस इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ फोरब्रेन। ये किसका पार्ट है? दिस इज अ पार्ट ऑफ फोरब्रेन। दिस इज नथिंग बट अ क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन ओनली, ठीक है। नाउ अनदर वन इज, ये सबको पसंद होगा, पिट्यूटरी, पता भी है लगभग को, पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। अनदर वन इज pineal ग्लैंड, जिसे थोड़ा इंटरेस्टिंगली अगर तुम सुनना चाहो उसे हम वेस्टिज ऑफ थर्ड आई भी बोलते हैं। वेस्टिज ऑफ थर्ड आई मतलब इधर से आके आपको मिलेगा जो आपको इंट्यूशन, सिक्स सेंस, ये सब समझने में हेल्प करता है किसी हद तक। एंड दिस पर्टिकुलर पिनियल ग्लैंड, इससे एक बहुत फेवरेट हार्मोन सिक्रीट होगा, सबका फेवरेट है। मैं बताऊँ क्या है? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन इज अ स्लीप हार्मोन, जिससे हमें नींद आती है, ठीक है। तो ये हार्मोन नॉर्मली क्या होता है? हार्मोन सिक्रीट होता है डार्क में, डार्क मतलब इन द मेन टाइम जस्ट डीम लाइट में, ओके। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप सो कुछ भी करो डीम लाइट में सोना चाहिए, जिससे कि पिनियल ग्लैंड अच्छे से मेलाटोनिन सिक्रीट कर पाए और आपको अच्छा खासा नींद आए, जिससे कि फ्रेश होकर दूसरे दिन उठ पाओ, अपना काम कर पाओ, फाइन। तो पिनियल ग्लैंड को हम वेस्टिज ऑफ थर्ड आई भी बोल सकते हैं। ये थोड़ा सा वर्ड इंटरेस्टिंग लगता है इसलिए मैंने लिखा। और इसको तुम ब्रेन सैंड भी बोल सकते हो क्योंकि बहुत छोटा होता है, ठीक है, ब्रेन सैंड बोल सकते हो। तो हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, पिनियल ग्लैंड है, ये सब कहाँ पे है? ब्रेन में है, समझे तुम? ब्रेन में है सब। अच्छा, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी में मैं अभी तुम्हें बताऊंगी भी एक डायग्राम बना के। एक चीज याद रखना, इन दैट हाइपोथैलेमस इज एक्चुअली कंट्रोलिंग द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी. Pituitary is referring to what? Pituitary is referring to master gland, but actually this is the main master because it's controlling the work of pituitary gland. ठीक है? Later on we will discuss about this. Now this particular portion in the neck area. If you see in the neck area, a butterfly, a small क्यूट बटरफ्लाई इज देयर। मैं अभी बात कर रही हूँ ना आपसे, किसके बेसिस पे बात कर रही हूँ? लैरिंग्स, ओके, वॉइस बॉक्स। जस्ट इन द लैरिंग्स के ठीक नीचे, वॉइस बॉक्स के ठीक नीचे इन द नेक एरिया, यहाँ पे एक बटरफ्लाई शेपेड ग्लैंड है। कहीं पे तुमने आर्टिकल पढ़ा होगा या तो हॉस्पिटल में अगर तुम गए होगे, उसमें लिखा रहता है अ बटरफ्लाई कैन रियून योर लाइफ। तो तुम सोचे होगे कि बटरफ्लाई हमारा लाइफ कैसे बिगाड़ दे, हम तो सामने आते ही उसे मार डालें। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, ये जो बटरफ्लाई है, दे आर टॉकिंग अबाउट द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, दैट इज थायराइड ग्लैंड, ओके, दिस प्रेजेंट इन द नेक एरिया। सो आई एम राइटिंग नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 इन द नेक रीजन, तुम्हारे समझने के लिए मैं नेक रीजन लिख रही हूँ स्पेसिफिकली, ओके। तो नेक रीजन में यहाँ पे एक इस तरह से आपको बटरफ्लाई शेपेड, सी जस्ट लाइक अ बटरफ्लाई, ओके, बटरफ्लाई शेपेड ग्लैंड मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? थायराइड ग्लैंड. Thyroid gland is the largest endocrine gland. तो नेक एरिया में है। यहाँ पे और एक पर्टिकुलर वो ग्लैंड है जिसको हम बोलते हैं पैराथायरॉयड। क्या बोलते हैं? पैराथायरॉयड. Now these parathyroid glands are present just like P. Okay, P-sized glands are there in the back side of thyroid gland. हमेशा याद रखना, बैक साइड का मतलब क्या है? थायराइड ग्लैंड के डॉर्सल पार्ट में प्रेजेंट है। अगर ये वेंट्रल बोले, पीछे क्या है? डॉर्सल है। तो थायराइड ग्लैंड का अगर तुम उठाओगे पीछे की तरफ, इन दिस एरिया, मतलब ये मैंने उल्टा वाला पार्ट बनाया जिससे कि आप देख पाओ इसे, दिस इज पैराथायरॉयड, ओके, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, ओके. So in the brain, 3 endocrine glands are there: hypothalamus, pituitary, and pineal. The neck region, thyroid gland is there. Okay, and the back side of thyroid gland, parathyroid glands are there. 4 P-sized, छोटे-छोटे होते हैं. इसका बहुत फंक्शन है, लेकिन ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है. फाइन. तो ये हमने 1, 2 देखा. और भी सेट्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो मैं भी बताऊंगी तुम्हें. ठीक है, चलो. थोड़ा सा वेट करता हूँ,
थोड़ा सा मैंने जो बोला वो आप थोड़ा सा सोचो क्या क्या बोला पॉइंट्स, ठीक है। नंबर थ्री अगर हम नीचे जाए, हार्ट सबको पता है, हार्ट किस तरफ है, मैं क्लास में जब भी पूछती हूँ तो बोलते हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट, ओके। तो ये हम कंटिन्यू करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, ओके। ओके तो हम कहाँ पे थे, आई एम डीलिंग विद द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो कि ब्रेन का देखा था, नेक रीजन का देखा था, ओके। आई एम गोइंग टुवर्ड्स द हार्ट। तो मैं तुमसे कुछ पूछ रही थी तब, ओके। हार्ट इज प्रेजेंट जस्ट बिटवीन द लंग्स, दैट इज द मेडियस्टिनल स्पेस, जो कि आपको हायर स्टडीज में अच्छे से समझ में आ जाएगा बाद में। बस इसमें एक चीज़ याद रखना, जस्ट अबोव द हार्ट one particular endocrine gland is there, this is termed as thymus, okay, this is thymus. Next हम अभी endocrine gland के ऊपर बोल ले। Number 4, अगर तुम देखोगे just in between the junction of stomach and duodenum there is a particular gland is there, this is just like a leaf, idea लग गया होगा कि क्या है ये, fine, this is nothing but a pancreas, okay, this is a pancreas. The pancreas is also an endocrine gland. Fine. Next, number 5. If you see a particular portion, the first portion 3 endocrine gland कहाँ पे मिला? Brain में. फिर तुम neck region में आके कितना मिला? Thyroid and parathyroid. Then after that in heart, just above the heart, in the ventral side. This is ventral side. Okay, just above the heart, thymus. Then after this, pancreas. Pancreas is also an endocrine gland. Okay. After this, अगर तुम आओगे तो आपको दिखेगा kidney. This is a kidney. 2 किडनी है, किडनी के ठीक ऊपर द ट्रायंगुलर शेप्ड ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड इज देयर, दीज आर suprarenal what is always referring to what, referring to kidney, suprarenal gland, that is adrenal gland, okay, these are adrenal glands, okay। तो यहाँ पे 2 है, हो गया। तो हमें कितना मिला, ऊपर 3, देन इन नेक रीजन अगेन 2, दैट इज 5, देन 6, 7 एड्रिनल ग्लैंड्स है, ओके। एंड आफ्टर दैट यू विल गेट व्हाट, इसके नीचे क्या है पता है, गोनड्स। सो इन केस ऑफ मेल द गोनड इज टेस्टिस, इन केस ऑफ फीमेल द गोनड इज व्हाट, ओवरी, दीज आर ऑर्गन। Now ovary and testis is also considered to be as endocrine gland, okay, उसको भी हम endocrine glands बोलते हैं। तो number 6, the gonads, in case of male this is testis, organ होता है, हाँ, अच्छा, in case of female this is ovaries, okay। तो gonads is nothing but a organ और an endocrine gland, मेल में टेस्टिस है, फीमेल में ओवरीज है। तो ये हमने बात किया अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आवर बॉडी, स्टार्टिंग फ्रॉम हेड अप टू द लोअर पेल्विस एरिया, ओके, समझ गए। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट पोर्शन में भी जाएंगे कि इन व्हाट वे द हाइपोथैलेमस इज इंस्ट्रक्टिंग द पिट्यूटरी, ओके, कैसे सिस्टम काम करता है, क्या क्या हार्मोन सीक्रेट होते हैं, व्हाट आर द टारगेट एरियाज एंड व्हाट आर द डिसऑर्डर्स। सो व्हेनेवर वी आर स्पीकिंग अबाउट डिसऑर्डर, एक्चुअली वी आर स्पीकिंग अबाउट द हाइपोसिक्रेशन और हाइपर सिक्रेशन ऑफ समथिंग, ठीक है। हाइपो मीन्स कम सिक्रेट होना, हाइपर मीन्स ज़्यादा सिक्रेट होना, कम सिक्रेट हुआ, ज़्यादा सिक्रेट हुआ, झमेला लग जाए, तब भी डिसऑर्डर होगा। झमेला क्यों लगता है, क्योंकि ऑप्टिमम लिमिट में ब्लड में हार्मोन्स होना चाहिए और सबका अपना अपना स्पेसिफिक टारगेट होता है, रिसेप्टर होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर रिसेप्टर्स नहीं है, स्पेसिफिक टारगेट के ऊपर वो काम नहीं कर पा रहा है तो सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, क्लियर। तो ये धीरे 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 आपका क्लियर होगा। बस अभी दिमाग में रखना कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स मैंने क्या क्या बोला था, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, pineal, then neck area, thyroid, just in the back side of thyroid gland is parathyroid gland, then after that you are getting just above the heart in the ventral side thymus, okay। पेनक्रियास है, स्टोमक और उसके बीच में होगा ड्यूडेनम, आपको पता है ना, स्टोमक के ठीक नीचे ड्यूडेनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक वहाँ से कनेक्टेड रहता है ये पेनक्रियास, ओके। किडनी है ये, ठीक है, किडनी के ठीक ऊपर 2 ग्लैंड होता है, सुप्रा वर्ड यूज किया, देखो सुप्रा मीन्स अबोव एंड व्हेनेवर इट इज रिटन एज सब, सब मीन्स नीचे, तो सुप्रा रिनल, रिनल वर्ड इज ऑलवेज रिलेटिंग टू व्हाट, किडनी, ओके।
adrenal glands. Goners is a particular organ, they are also acting as exocrine as well as endocrine gland. तो मेल में टेस्टिस है, फीमेल में ओवरीज है. इतना आपका क्लियर है. अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करें. ओके चलो, धीरे धीरे आपका देखना और भी क्लियर होगा. अभी तो एकदम बेसिक आइडिया मैं तुम्हें दे रही हूँ जिससे कि तुम आगे इस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेट कर पाओ इन अ बेटर वे. फाइन, फॉर अ बेटर ग्राफ्स आपको ये सब चीज़ें ध्यान से देखना पड़ेगा. अच्छा, अब तुम ध्यान से सुनो, थोड़ा सा और एक आइडिया मैं तुम्हें दे दूँ कि कुछ कुछ ग्लैंड्स जो होते हैं वो प्राइमरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं. प्राइमरी एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या है? जो स्पेसिफिकली दे आर रिलेटिंग टू हार्मोन सिक्रेशन. सेकेंडरी कुछ होते हैं जो डायरेक्टली एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, जैसे कि हार्ट, लीवर, किडनीज हैं, थाइमस. थाइमस मैंने यहाँ पे लिखा, थाइमस जो थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था वो एक्चुअली लिम्फॉइड ऑर्गन है. उसका रोल होता है, WBCs होते हैं कुछ लिम्फोसाइट, उसका क्या करना, उसको गाइड करना, उसका मैचुरेशन में सपोर्ट करना. तो तुम देखोगे थाइमस हो या तो तुम्हारा लीवर हो या तो तुम्हारा किडनी हो या तो तुम्हारा, और एक पार्ट क्या था, लीवर था, किडनी मैंने कहा, इसके बाद तुम्हारा है हार्ट और थाइमस. ये सब सेकेंडरी एंडोक्राइन ग्लैंड है. फाइन, अब प्राइमरी बाकी सब है. और एक पॉइंट याद रखना, हेटेरोक्राइन. ये सब थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको चाहिए. हेटेरोक्राइन का मतलब होता है मिक्स्ड ग्लैंड. मिक्स्ड, इसका मतलब वो एक्सोक्राइन फंक्शन भी शो करता है, एंडोक्राइन फंक्शन भी शो करता है. फाइन, सो हम वो लिख लेते हैं थोड़ा सा. तो प्राइमरी एंडोक्राइन ग्लैंड का तो आइडिया है ही आपका, जो कि प्राइमरीली हार्मोन सिक्रीशन की तरफ ही उसका प्रेशर है. ठीक है, वही वो सिक्रीट करता है. ओके, नेक्स्ट वन इज योर सेकेंडरी. इफ टाइम परमिट्स हम बात करेंगे. ओके, अनदर वन इज योर हेटेरोक्राइन, that is mixed gland. What is mixed gland? Mixed gland is actually exocrine plus endocrine, दोनों फंक्शन इसमें होगा. फाइन. अच्छा, अगर मैं अभी लिखूँ इसमें प्राइमरी एंडोक्राइन ग्लैंड में, तुम अगर पकड़ो हाइपोथैलेमस लिखो, प्राइमरीली वो हार्मोन सिक्रीशन से बहुत ज़्यादा डील करता है. पिट्यूटरी तो है ही, फिर एड्रिनल है, ओके एक्सेट्रा. तो इसमें प्राइमरी में आ जा रहा है. सेकेंडरी में एक्चुअली तुम्हें यहाँ ये दो टर्म के लिए पॉइंट लिखा है. सेकेंडरी एंडोक्राइन ग्लैंड के केस में हार्ट, क्योंकि हार्ट इज नॉट डायरेक्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, लीवर, ओके, कैन किडनीज, देन थाइमस. तो ये सब हम अगर टाइम परमिट के, हम लेटर ऑन वी विल सी दिस पर्टिकुलर पार्ट. यहाँ पे एक चीज़ बस याद रखना कि इम्यून सिस्टम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मैं तुम्हें समझाऊंगी अगर आज हम कर पाए पूरा इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है. अच्छा, एंडोक्राइन हेटेरोक्राइन में क्या है, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन है. इसमें एग्जाम्पल तुम याद रखोगे, पेनक्रियास, देन गोनड्स, ओवरी हो या टेस्टिस हो. फाइन, तो थोड़ा सा आइडिया हुआ. प्राइमरी में हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी, अदर देन दिस जो मैंने यहाँ पे छोड़ा ये प्राइमरी में आ जाएगा. हार्ट, लीवर, किडनीज, थाइमस सेकेंडरी में है. और हेटेरोक्राइन मीन्स मिक्स ग्लैंड, दैट इज एक्सोक्राइन प्लस एंडोक्राइन. क्लियर? तो इतना तुम समझे. अब हम एक्चुअल पार्ट में जा रहे हैं. एक्चुअल मीन्स थोड़ा सा इसमें डिस्क्रिप्शन ज़्यादा है. दिस इज एक्चुअली डीलिंग विद द हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी, इन व्हाट वे द हाइपोथैलेमस इज रेगुलेटिंग द एंटीरियर पिट्यूटरी, व्हाट इज द एक्चुअल पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, ये सब थोड़ा सा बताना है आपको. ठीक है, तो पॉइंट आपका और क्लियर होगा. सी this is the diagram which is relating to what, pituitary gland. Okay, now this particular part is hypothalamus. Now here one neuron is there because everything the brains are made up of. brain का cell क्या होता है, न्यूरॉन होता है. फाइन, brain का cell न्यूरॉन है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे there are certain cells, that is neuron is entering to the system. But they are not directly entering to the system. ठीक है, यहाँ पे तुम ध्यान रखना, एक ब्लड कैपिलरी बेड है. ठीक है, ब्लड
कैपिलरी bad है, and this particular part is hypothalamus stalk, fine, and this is a stalk that is infundibulum, infundibulum. Okay, now here this particular portion is anterior pituitary. Okay, this portion is posterior pituitary. Okay, always remember that hypothalamus direct extension is posterior pituitary, but this is the origin is totally different. ये आपको थोड़ा सा टफ लगे शायद इस लेवल पे, थोड़ा सुनना है, सुन सकते हो कि नॉर्मली जब भी ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, जब भी एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट होता है, तब जब हमारा बकल कैविटी बनता है उसके साथ ही इसका फॉर्मेशन होता है. बट हाइपोथैलेमस का जो ये एक्सटेंशन है, दिस इज अ डायरेक्ट एक्सटेंशन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी. ये हाइपोथैलेमस एक्सटेंडेड टू फॉर्म दिस पर्टिकुलर पाउच, दिस इज ओनली पोस्टीरियर पिट्यूटरी. ओके, एंटीरियर पिट्यूटरी का ऑरिजिन इसके साथ नहीं मिलेगा. क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट. Now anterior pituitary is forming their own hormones, they are storing the hormone, they are secreting the hormone. But एक चीज़ याद रखना इसमें, ये खुद बनाता है हार्मोन, स्टोर करता है, but secretion with the instruction of neurohormones. Okay, now what are neurohormones? Neurohormones मतलब होता है releasing and inhibiting factors. There are certain hormones which are guiding the anterior pituitary hormone, कब उसे रिलीज करना है और कब उसे स्टॉप करना है. ठीक है, इस बेसिस पे काम करेगा. इसका मतलब ये मास्टर हुआ ना, तुम देखो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, गलत नहीं है, पहले बोलते थे, लेकिन अगर स्टडी करने के बाद, ये तो बहुत पुराना ही डाटा है कि स्टडी करने के बाद पता चला कि हाइपोथैलेमस इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग. हाइपोथैलेमस इज कंट्रोलिंग द सिक्रीशन एज वेल एज द रिलीजिंग इनहिबिटिंग, जो मैंने अभी बोला, ये उसको कंट्रोल करता है. लेकिन यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे डाउट आता है इनका कि एंटीरियर पिट्यूटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स. ओके, एंड साथ ही साथ ये क्या करता है, स्टोर भी करके रख सकता है. लेकिन जब भी उसे सिक्रीट करना है या तो स्टॉप करना है, मत करो अभी या करो अभी, ये इंस्ट्रक्शन हाइपोथैलेमस आएगा. दैट इज अ पार्ट ऑफ फोरब्रेन. ओके, हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ फोरब्रेन, याद रखना. ओके, तो दे आर सिक्रीटिंग व्हाट? दे आर सिक्रीटिंग न्यूरो हॉर्मोन्स. न्यूरो हॉर्मोन्स ऐसे लिखा रहता है, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग, स्टॉप. ओके, फैक्टर्स ये रिलीज करते हैं. न्यूरो हॉर्मोन्स रिलीजिंग और इनहिबिटिंग. इनहिबिटिंग का मतलब अगर आपको नहीं दिखा होगा, ये देखो, इनहिबिटिंग इसका मतलब होता है स्टॉप करना किसी चीज़ को. रिलीजिंग आपको पता ही होगा, इंस्ट्रक्ट करना कि आप सिक्रीट करो. ठीक है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है? सिंथेसाइज हार्मोन, या तो तुम सिंथेसाइज नहीं समझो तो प्रोड्यूस लिख सकते हो, प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन. ठीक है, स्टोर हार्मोन्स, तो ये प्रोड्यूस भी करता है, स्टोर भी करता है, बट विद द इंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूरो हार्मोन्स. ओके, सिक्रीशन किसके अकॉर्डिंगली होगा? इसके अकॉर्डिंगली होगा. जब तक ये नहीं बोलेगा सिक्रेट नहीं कर पाएगा. फाइन, ध्यान रखना. posterior pituitary. Posterior pituitary is actually is linked with certain hormones are there which is directly entering to the posterior pituitary part. इसका मतलब क्या है पता है? Posterior pituitary is responsible for only, they are only storing hormones of hypothalamus. Okay? तो आपके दिमाग में ये डाउट एक चीज़ आ सकता है, बेसिक चीज़ है, एंटीरियर पोस्टीरियर क्यों बोला? एंटीरियर इस एंड से अगर जाओगे एंटीरियर बोलेंगे, ठीक है, ठीक इसके पीछे, मतलब इधर जाने के बाद इसके ठीक पीछे बैक साइड में एक पाउच मिलेगा जिसे पोस्टीरियर बोलते हैं. ठीक है, आई एम रिपीटिंग द पॉइंट्स. हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ फोरब्रेन. Extension of direct expression of this hypothalamus is posterior pituitary, but whenever we are talking about anterior pituitary, this is actually originated with buccal cavity. Okay, थोड़ा सा बोला, ज़्यादा नहीं चाहिए. Now this particular part, the anterior pituitary, is responsible for production of various hormones as well as the store it, but secretion is totally depend upon neurohormones, that is releasing and inhibiting factors. So whenever the hypothalamus is instructing them कि तुम release करो तो वो करेगा, तुम अभी रिलीज मत करो, बंद करो तो ये बंद करेगा. ठीक है, इसका मतलब मेन बॉस तो ये हुआ फिर हाइपोथैलेमस. और ये जो है उसको तो डायरेक्ट आके हार्मोन दे के चला जाता है कि तुम बस स्टोर करो, मैं जब भी बोलूँगा तुम सीक्रेट करना. मतलब मेन बॉस क्या हुआ? ये हमारा बॉस है. ठीक है,
तो हमारे सिस्टम का ये बॉस है जो कि एक्चुअली में देखो इतना सुंदर से सिस्टम को डील कर रहा है। तो धीरे धीरे आपका क्लियर होगा। आप डायग्राम देखें तो अच्छे से, तो मैंने बहुत बेसिक बनाया। ये कैपिलरी बेड का आप डाउट मत करना, यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन आ रहा है ये मॉलिक्यूल्स इसको गाइड करें। न्यूरो हार्मोन्स ब्लड से होके यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ब्लड का कंटेक्ट के लिए ब्लड कैपिलरी बेड है, ठीक है। चलो, तो ये पार्ट मैंने थोड़ा सा आइडिया आपको दिया कि पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस कैसे होता है। अभी तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन क्या है, दूसरे हार्मोन्स क्या है। बहुत बड़ा चैप्टर है ये, धीरे धीरे मैं बता रही हूँ जिससे आपका पॉइंट क्लियर हो। ओके, चलो। एंड ऑलवेज रिमेंबर, रिपीटेशन और रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम टीचर है, हमें रिपीट करना ज़रूरी है जिससे कि आपके दिमाग में वो पॉइंट पहुँचे कि कभी ऐसे हो सकता है आप कंफ्यूज हो। आफ्टर सम टाइम एक बार सुने, 2 बार सुने, 3 बार में समझ में आता है, किसी को 2 बार में आता है, किसी को 1 बार में भी आ सकता है, वो अलग बात है। तो इसलिए रिविजन भी इंपॉर्टेंट है। क्लास के बाद तुरंत उसे एक बार पढ़ लेना। ओके, देखो अभी एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन्स क्या क्या है। इसका और भी बहुत सारे नाम है, मैंने ज़्यादा नहीं बोला क्योंकि आप बेसिक में कंफ्यूज हो जाओगे। एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स आर, सी, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन देखो नाम से ही पता चल रहा है, ग्रोथ, दैट मीन्स दे आर एक्चुअली गाइडिंग अवर बॉडी कि वो गार्जियन की तरह काम कर रहा है। उसका मतलब वो क्या कर रहा है, चीज़ें जमा रखना, प्रोटीन सिंथेसिस कराना, ज़्यादा ग्लूकोज जो है उसे यूज़ होने ना देना, जिससे कि आपके सिस्टम में अच्छा खासा ग्रोथ रहे फ्यूचर के लिए। जैसे हमारे घर में शायद पापा हो या मम्मी हो, हमारे जो भी गार्जियन है, हमारे फ्यूचर के लिए वो सोच के जो जमा करके रखते हैं। तो ये ग्रोथ हार्मोन एक गार्जियन का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे और एक नाम मैं लिखूंगी जिससे कि तुम्हारा पॉइंट एक क्लियर हो, सोमेटोट्रोपिन। This is relating to somatotropin or somatic word is relating to what? Relating to body. So whenever we are talking about somatotropin, the target of growth hormone or somatotropin is what? Target होगा ना एंडोक्राइन ग्लैंड का, यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी का इसका टारगेट क्या है, तब बोलोगे द बॉडी सेल्स आर टारगेट, साइड बाय साइड लीवर, ओके, लीवर भी है और बॉडी सेल उसका टारगेट है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट इफ यू सी the particular part, TSH, that is thyroid stimulating hormones, okay, thyroid stimulating hormones। इसका मतलब stimulating लिखा है, that means they are stimulating। ये किसको जाके इन्फॉर्म कर रहा है, इन्फॉर्मर है, ठीक है, इन्फॉर्म कर रहा है थायराइड ग्लैंड को तुम सीक्रेट करो, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस से क्या सीक्रेट होना चाहिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बोल रही हूँ, TSH, RF, अगर RF सीक्रेट हुआ दैट इज रिलीजिंग फैक्टर, कहाँ से, हाइपोथैलेमस से, तभी TSH एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट हो सकता है। देन ओनली द थायराइड ग्लैंड कैन स्टार्ट द वर्क, ओके। जब इनिबिटिंग फैक्टर आएगा हाइपोथैलेमस से तब बंद करना पड़ेगा क्योंकि हाइपोथैलेमस इज द मेन बॉस, ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द टारगेट इज थायराइड ग्लैंड, ओके। नेक्स्ट नंबर 3, ACTH, fine. This is adrenocorticotropic hormones। एक चीज ध्यान रखना कि सुप्रारेनल ग्लैंड मैंने आपसे डिस्कस किया था ना, दैट इज द एंडोक्राइन ग्लैंड विच इज प्रेजेंट जस्ट अबव द किडनीज, दैट इज सुप्रारेनल एड्रिनल ग्लैंड। नाउ इन एड्रिनल ग्लैंड, लेटर ऑन वी विल डिस्कस दिस पार्ट। एड्रिनल ग्लैंड में 2 पार्ट होता है, द आउटर एरिया इज टर्म्ड एज एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड द इनर साइड इज एड्रिनल मेड्यूला। नाउ हियर एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का जो टारगेट है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, मेड्यूला नहीं है, ध्यान रखना, एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना के तुम्हें बता दो, थोड़ा सा बाद में हम ड्रॉ करेंगे फिर से। अगर तुम ये देखो यहाँ पे आउटर एरिया, दिस इज एड्रिनल कॉर्टेक्स, okay. The target of adrenocorticotropic hormone is adrenal cortex. Number 4, prolactin, okay. Now prolactin hormone is what? Prolactin is a luteotrophic hormone, that means they are actually supporting the mammary gland for the milk production during gestation period. Now gestation period is what? The pregnancy period. उसके टाइम में जब mammary gland का development होता है, milk production होता है, growth होता है, it's actually controlled by prolactin, okay. Then target is mammary gland, ठीक है। तो
तो इतना और भी है, तुम इसमें देख लो तो पॉइंट। ग्रोथ हार्मोन इज सोमेटोट्रोपिन, द टारगेट इज बॉडी सेल्स और लीवर। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, ये बॉडी का गार्जियन है, एक एक वर्ड याद रखना जो बाद में हेल्प करेगा। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ओके। दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी इज गाइडिंग द थायराइड ग्लैंड। हमेशा याद रखना जो थायराइड ग्लैंड है पता है वो क्या है, बॉडी का मैनेजर है, वो सब कुछ मैनेज करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, योर RBC प्रोडक्शन, ऑस्मोरेगुलेशन, जो हम डील करेंगे बाद में, ठीक है। ACTH जो होता है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है, जो कि एड्रेनल कॉर्टेक्स टारगेट है, और प्रोलेक्टिन का टारगेट क्या है, मेमोरी ग्लैंड है, समझे। अच्छा, और एक है तुम्हारा MSH। MSH इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओके। मेलानोसाइट होता है तुम्हारा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तुम्हें ये वर्ड मिला होगा ना, मेलानोसाइट, अ टाइप ऑफ सेल विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन नॉर्मली इन स्किन। तुम किसी से भी पूछो, मेलानिन पिगमेंट जो होता है सबको पता है लगभग, मेलानिन पिगमेंट सिर्फ स्किन पे नहीं होता, हमेशा याद रखना। रेटिना में है, रेटिना पता है ना, आई में। देन इट इज प्रेजेंट इन द आइरिश। आइरिश अगर तुम देखो, सपोज आई बॉल है, ठीक है, ये प्यूपिल है जहाँ से लाइट एंटर करता है, आउटर एरिया ऑफ दिस पीपल, दिस इज व्हाट, आइरिश। नाउ आइरिश तुमने ऐश्वर्या रॉय या तो ऋतिक रोशन का तुमने देखा था, उसका अलग है ना कलर, तो हमेशा वो ब्लैक और ब्राउन कलर को डिफाइन नहीं करता, दूसरे कलर्स भी होते हैं। एंड मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो टारगेट है वो मेलानोसाइट्स है, जो स्किन में भी है, रेटिना में भी है और आइरिश में भी है, डिफरेंट फॉर्म्स, ओके। अच्छा, लास्ट और एक रह गया जो मैं यहाँ पे लिखना पसंद करूँगी, यहाँ पे दिखेगा नहीं शायद, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। एक है जो कि तुम बोल सकते हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, गोनाडोट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन्स, ओके। नाउ गोनाडोट्रोपिन्स आर अ टाइप ऑफ हार्मोन विच इज नॉर्मली इन टू फॉर्म, दो फॉर्म में प्रेजेंट है, FSH, LH, ओके। FSH is what? Follicle stimulating hormone and LH is luteinizing hormone. I'm writing the full form, okay. उसके बाद हम टारगेट उसका देखेंगे। FSH is follicle stimulating hormone and this is luteinizing hormone, okay. तो anterior pituitary is very important part actually. They're secreting different kind of hormone and they're targeting different areas जिससे कि तुम्हारा सिस्टम अच्छे से काम कर पाए। ग्रोथ हार्मोन का टारगेट लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, यहाँ पे ध्यान दिया होगा। ग्रोथ हार्मोन का टारगेट जो है बॉडी सेल है, और दूसरा आपका क्या था, हमने लिखा था थोड़ी देर पहले, मैंने रब कर दिया पॉइंट, लीवर है, फाइन। TSH का टारगेट क्या है, थायराइड ग्लैंड है। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक का हार्मोन्स का टारगेट क्या है, एड्रेनल कॉर्टेक्स है। प्रोलेक्टिन का टारगेट है मेमोरी ग्लैंड एंड MSH जो है उसका टारगेट क्या है, स्किन का मेलानोसाइट। तो स्किन मेलानोसाइट लिख के रखती हूँ मैं, हाँ, मेलानोसाइट, मेलानोसाइट अभी के लिए स्किन लिख के रखो कि लगभग कॉमन है। और ये जो है इन दोनों का टारगेट क्या है, गोनाड्स टारगेट, ओके। तो लगभग तुम समझे कि इसमें एंटीरियर पिट्यूटरी का ये हार्मोन है विच इज नॉर्मली गाइडेड बाय, क्या गाइड कर रहा था, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है वो न्यूरो हार्मोन सिक्रेट करके इसके सिक्रेशंस को गाइड करते हैं, फाइन। अच्छा चलो, अभी हम ज़्यादातर स्ट्रेस में तुम्हें अभी के लिए ग्रोथ हार्मोन और थायराइड ग्लैंड को थोड़ा सा स्ट्रेस देती हूँ, ठीक है। सी याद रखना, सोमेटोट्रोपिन, ओके, दैट मीन्स द टारगेट इज बॉडी सेल, टारगेट बॉडी सेल है, ओके। तो ग्रोथ हार्मोन सोमेटोट्रोपिन है, देयर मेन बेसिक फंक्शन ठीक है, क्या कर रहा है, सपोर्ट प्रोटीन सिंथेसिस, ओके। द नेक्स्ट याद रखना, stop unnecessary utilization of glucose, ठीक है। तो इसमें सबसे बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड इज दिस पर्टिकुलर हार्मोन
इज एक्चुअली हेल्पिंग इन प्रोटीन सिंथेसिस, लेकिन ये प्रोटीन ब्रेकडाउन को रोकता है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज अननेसेसरी यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। तो मैं गार्जियन का रोल प्ले करता है, मैंने कहा, तो व्हाट इज गार्जियन इज एक्चुअली डूइंग? गार्जियन का रोल है फ्यूचर का भी सोचो, नहीं कि एक दिन में सुख मिला तुम खा के बैठ गए सब। ऐसे होने से तुम्हारा जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है आगे जाके हैम्पर हो सकता है। ओके, तो तुमने सुना होगा कि समटाइम इट मे हैपन दैट किसी बच्चों में चाइल्डहुड डेज के केस में क्या होता है, कम सिक्रेशन अगर हुआ तो क्या होगा, हाइपो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन होगा। हाइपो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन से चाइल्डहुड डेज में ड्वार्फ हो जाता है ना, थोड़ा सा वो उसका ग्रोथ रुक जाता है। ठीक है, दूसरा कभी ऐसे हो सकता है कि किसी केस में क्या है, ओवर सिक्रेशन हो गया। इट मे बी रिलेटेड टू योर फूड इनटेक, इट मे बी रिलेटेड टू जेनेटिक रेगुलेशंस। ओके, वो डिपेंड करता है। तो हाइपर सिक्रेशन से क्या होगा, अगर बच्चों में हुआ तो गाइगेंटिज्म। गाइगेंटिज्म में क्या होता है, एकदम लंबे लंबे हो जाते हैं। ठीक है, एक चीज है 11 में तो दिया है, 10 में भी आप रिलेट कर पाओगे उसे। दिस वेरी कॉमन प्रॉब्लम नाउ इट इज। कभी कभी देख सकते हो तुम, अचानक से किसी का 40-45 में डायबिटीज मेलाइटिस हो गया, शुगर बढ़ गया, डॉक्टर दिखाया, पता चला उसका इंसुलिन ठीक है, पेनक्रियास ठीक है, सब ठीक है, फिर भी उसका क्या हो गया, डायबिटीज मेलाइटिस। ये रिलेट कर सकता है इस हार्मोन से। ग्रोथ हार्मोन्स का सिक्रीशंस जब ज़्यादा हो जाता है मिडिल एज पीपल में, तब पहले तो उसका शुगर लेवल दिखाएगा हाई है, फिर तुम्हें पता चलेगा इट्स नॉट रिलेटिंग टू इंसुलिन, जिसे हम इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस में इंसुलिन सिक्रीशंस ओके, पैनक्रियास इज ओके, एवरीथिंग इज ओके, लेकिन इसका ओवर सिक्रीशन हो गया, तब क्या होगा, एक्रोमेगाली होता है। एक्रोमेगाली में क्या होता है पता है, गोरिल्ला लाइक फीचर्स आता है। ये टर्म हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ होता है। गाइगेंटिज्म नहीं होगा, क्यों, बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि 18 to 22 ईयर्स के बाद हमारा ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। क्यों होता है तुम बाद में समझोगे, क्यों अभी तुम्हें एपिफाइशियल प्लेट ये वर्ड समझ में नहीं आएगा। मतलब इतना ध्यान रखना कि ग्रोथ हमारा लगभग 18 to 22 ईयर्स के बाद जनरली नहीं होता। तो एक्रोमेगाली में गोरिल्ला लाइक फीचर इज मोर कॉमन। ग्रोथ मतलब लंबा नहीं होगा वो, लेकिन डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ होगा। ठीक है, तो आई एम राइटिंग द वर्ड विच इज रिलेटेड टू डिसऑर्डर ऑफ ग्रोथ हार्मोन। फाइन, सो व्हाट आर दे, हाइपोसिक्रेशन, हाइपो मीन्स लेस, हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, इन एक याद रखना, कैटेगरी याद रखना, चिल्ड्रंस इन द चाइल्डहुड डेज। फाइन, सो इट मे लीड टू ड्वार्फिज्म, हाइट कम होगा। ठीक है, तो अच्छा, नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 हाइपर सिक्रेशन, ज़्यादा किसका, ग्रोथ हार्मोन का, ज़्यादा तुम समझ गए होगे। ठीक है, ये भी तुम्हारा इससे चाइल्डहुड डेज के इसे रिलेट करे, चिल्ड्रंस में कॉमन है, मतलब उसी एज में अगर हैम्पर हुआ तो तब गाइगेंटिज्म होगा, लंबे लंबे हो जाएंगे, अमिताभ बच्चन से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लंबे, 7-8 फीट हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है। दूसरा आपका है नंबर 3 एक्रोमेगाली। इतना आज हम करते हैं। ठीक है, एक्रोमेगाली में नॉर्मली क्या होता है, इसमें तुम देखोगे मिडिल एज पीपल में होता है। ओके, तो मिडिल एज में है। तो आज हमने इतना तक समझा। नेक्स्ट कभी ऐसा सेशन मिले तो विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस पार्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।